पता नहीं आप लोग क्या राइवलरी की बात कर रहे हो। मुझे तो बस ग्राउंड पे जाने के बाद ऐसे ही लगता है कि स्टेडियम भरा होता है, और जब स्टेडियम भरा होता है तो मैं अपने टीम को और सबको यही बोलता हूँ कि चलो भाई लोग, एंटरटेनमेंट का टाइम आ गया है। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में बैट से भी और बाकी चीज़ों से भी भारतीय टीम ने बहुत अच्छा किया। अगले मैच में भी बाकी चीज़ें क्या होती है भाई। कंट्री हमेशा सपोर्ट करता है हर गेम में, वैसे ही ये गेम में भी सपोर्ट करते रहे। और संडे है तो मेरे हिसाब से ज़्यादा लोग बैठ के देखेंगे मैच। अभी देखो उस टाइम तो पता नहीं, मैं कभी खेला नहीं तो मैं Salman Ali Agha, Pakistan won the Tri-Series. It is in a rebuilding phase at the moment too, so to speak. Where you are in terms of the rebuild and how you're looking forward now with preparations for the Asia Cup? I think we're playing good cricket. We have started that like few months ago, like 4-5 months ago, and now I think things are coming together. And as a team, I think we're playing good cricket, and we are looking forward to this tournament as well. And everyone is like very excited. It's you don't need to say anything to any player, because everyone is individually very different. If someone wants to be aggressive in the field, they're more than like welcome to do that. So when it's come to fast bowlers, they are always aggressive, and you can't just stop them, because that's what keep them going. So whoever wants to do like be aggressive in the field, they are more than welcome. So yeah, from my side, there is no instruction to anyone, as long as it stays in the ground. Well, in T20s, I don't really think so anyone is favorite, because at particular day you have to play good cricket, because it's a T20 very fast game. So in 1 hour or 2 hour game can change. And I said that the other day, because the Tri-Series was always preparation for Asia Cup, and the environment was like we have to win that tournament. So I just said that in that way. Tri-Series was always a preparation. If we won it, that's very good. If we didn't, we still have to come here and play good cricket and win the Asia Cup. That's all matter, because that was for that Tri-Series was that always a preparation for that Asia Cup. So that's what I said there. Sudhanshu sir, just wanted to follow up on Bodhi's question. These cricketers always say that they block out the outside noise, but in a match like India versus Pakistan, which is happening after what's happened in our country, do you think that's really possible to block out such noise that there are even calls for boycott? I think for players and for us, once BCCI says and they are aligned with government, we are here to prepare and we are here to play. It will be a competitive game. India-Pakistan game is always a competitive game. So we rather focus on that. कुलदीप भाई, पाकिस्तान के साथ आपकी लगातार परफॉर्मेंस आती रही है 2018 से लेकर अब तक। ये जो हमने पिछला मैच खेला, ये कितना डिफरेंट था, क्या आप बता पाएंगे? और क्या ऐसा होता है कि आपकी परफॉर्मेंस हमेशा आती है? मतलब हार्दिक भाई भी हैं, रोहित भाई भी थे, विराट भाई भी थे, बट ये कुछ लोगों की परफॉर्मेंस, क्या ऐसा स्पेशल कोई अलग मोटिवेशन होता है, स्पेशली प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, कुछ अलग चलता है माइंड में? और ये वाला कितना डिफरेंट था? नहीं, डिफरेंट तो नहीं था, क्योंकि आप पिच पे उतरते हो तो कोई डिफरेंट नहीं होता। आपके सामने एक बैट्समैन होता है, उसको आप बॉल डालनी है, और जस्ट द माइंडसेट कि आप चाहते हो कि आप उनके अगेंस्ट बेस्ट करो, और आप चाहते नहीं हो कि आप पीछे हटो कोई भी स्टेप लेने में। तो हमेशा मोटिवेशन यही रहती है कि इनके अगेंस्ट अच्छा करना है। ऑब्वियसली जो हमारी हिस्ट्री रही है वो द ईयर्स, उसकी वजह से भी हो सकता है, बट हाँ, इट्स जस्ट कि बहुत लकी हूँ कि अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है इनके अगेंस्ट, और ऐसे ही चलता रहे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि पाकिस्तान को हराने में अभी भी वही अलग मज़ा आता है जैसे पहले आता था 2003-2000 उस टाइम की बात अगर मैं करूँ तो? अभी देखो उस टाइम तो पता नहीं, मैं कभी खेला नहीं तो मैं तो मैं बता नहीं सकता। बट राइवलरी की बात करें तो पता नहीं आप लोग क्या राइवलरी की बात कर रहे हो। मुझे तो बस ग्राउंड पे जाने के बाद ऐसे ही लगता है कि स्टेडियम भरा होता है, और जब स्टेडियम भरा होता है तो मैं अपने टीम को और सबको यही बोलता हूँ कि चलो भाई लोग, एंटरटेनमेंट का टाइम आ गया। इतने लोग आए हैं मैच देखने के लिए, तो आपको एंटरटेन करना पड़ेगा सबको। लेट्स प्ले सम गुड ब्रांड ऑफ क्रिकेट। एंड और तो मेरे हिसाब से हम लोग इतना ज़्यादा कुछ सोचते नहीं है। 3 गेम खेला है हमने, अभी तीनों गेम जीतने में उतना ही मज़ा आया जितना गेम इसके पहले वाला गेम जीतने में मज़ा आया था। तो आई फील एवरी गेम इज़ अ न्यू चैलेंज, वी टेक इट इन अ स्ट्राइड, और अच्छा लगता है जीतते और कुछ उसमें से सीखते हैं और नेक्स्ट गेम में ट्राई करते करने के लिए। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में बैट से भी और बाकी चीज़ों से भी भारतीय टीम ने बहुत अच्छा किया। अगले मैच में भी बाकी चीज़ें क्या होती है भाई? अगले मैच में भी भारतीय टीम वैसे ही करेगी जैसे पिछले मैच में किया था। अच्छा, बॉल से अच्छा किया था, करेक्ट, वो बोलना चाह रहा है, फिर ठीक है।
जी बिल्कुल, अच्छा बॉल और बैट का अच्छा कॉन्टेस्ट है, अच्छी इंटेंसिटी का भी कॉन्टेस्ट है। आई फील जैसे कि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बोला कि पूरा स्टेडियम भरा होता है, उससे ज़्यादा आपको क्या है, बेस्ट क्राउड आता है सपोर्ट करने के लिए। एंड इट्स बेस्ट थिंग, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड फॉर द कंट्री एंड एंजॉय द गेम। सूर्य भाई, पिछले जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था तो देखा हमने कि सुबह से जो पूरा हमारे देश में थोड़ा गुस्सा दिखाया गया, लेकिन शाम को जब हम मैच जीते तो पूरा देश में खुशी का माहौल था, एक अलग माहौल था। इस बार भी आपको देश को ये जीत कहेंगे गए ना, इसीलिए खुशी मनाया, और क्या। तो इस बार भी कुछ ये कहेंगे देश को सिर्फ संडे को एंजॉय करें मैच और सब चीज़ों को भूल जाएं, क्या कुछ बोलेंगे? आई मीन देखो, जैसे भी कंट्री हमेशा सपोर्ट करता है हर गेम में, वैसे ही ये गेम में भी सपोर्ट करते रहे। और संडे है तो मेरे हिसाब से ज़्यादा लोग बैठ के देखेंगे मैच, तो आराम से बैठे एंजॉय करें गेम। और हम लोग ग्राउंड पे जाएंगे तो पूरी कोशिश करेंगे सेम इंटेंसिटी से खेले, सेम एनर्जी से खेले, और हमेशा हम ट्राई करते हैं अपना ए गेम आगे रखने के लिए, और वही ट्राई करेंगे पूरा ग्राउंड पे। आपने 2 इनिंग्स खेली इंडिया के खिलाफ, ज़ाहिर है बड़ी परफॉर्मेंस काउंट की जाती है, लेकिन अभी भी वो थोड़ा मिसिंग लिंक है, मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो अब ये बड़ा डू एंड डाई मैच है अगेंस्ट श्रीलंका, तो क्या हम समझे कि अब आप इसको कंटिन्यू करेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने चक्कू की बात की है तो काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि पहले मेरे जब मैं रन्स करता था तो बाउंड्रीज बहुत कम होती थी मेरी। और जिस तरह आपने परफॉर्मेंस की बात की, अगर ये मैच जीत जाते तो मेरे लिए बहुत अहम होता। और हाँ, इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस करना आपको पता है, थोड़ा सा उसको लोग हाईली रेट करते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर जीत जाए तो बड़ा अच्छा होता। आपने साल में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए, लेकिन अगर छक्के छुड़ा देते तो अच्छा लगता। लेकिन 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका एक्शन बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्कस हो रहा है, वो आप क्या कर रहे थे, और दूसरा ये जानना चाहता हूँ कि आपने हार्दिक पांड्या के साथ थोड़ी सी आपकी आर्गूमेंट हुई थी, वो क्या हुई थी? मेरे ख्याल से चक्कू की तो आपने बात की, तो वो तो लगेंगे, आगे भी आपको इंशाल्लाह नज़र आएंगे। और वो तो जस्ट एक मोमेंट था उस टाइम। मैं सेलिब्रेशन बहुत कम करता हूँ 50 पे, तो माइंड में अचानक से आया कि आज एक सेलिब्रेशन करते, वो मैंने कर दिया। मुझे पता नहीं कि लोग क्या लेंगे, मुझे उसका परवाह नहीं है। और बाकी आपको पता है, एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए जहाँ भी हो, जो भी अगेंस्ट हो। ज़रूरी नहीं कि इंडिया हो, हर टीम के अगेंस्ट एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए जिस तरह हम आज खेलें। 16 एशिया कप हो गए, कभी इंडिया पाकिस्तान का फाइनल नहीं हुआ, तो लग रहा है कि बांग्लादेश का मैच जीत के एक तीसरा मैच भी इंडिया से होगा। अभी तो वो लोग फाइनल तक नहीं पहुँचे, अगर जब पहुँचेंगे तो फिर देखते हैं उनके साथ, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं फाइनल जीतने और एशिया कप को जीतने। जो भी टीम आएगी, हम एज अ टीम रेडी है और इंशाल्लाह उनको हराएंगे। बॉलिंग हमारी हमेशा जो है वो बेहतर परफॉर्म करती है, और आज भी देखा जा रहा था कि 134 का टारगेट जो है वो के लिए काफ़ी टफ हो गया। अगर हुसैन तलत और नवाज़ की पार्टनरशिप ना होती तो काफ़ी क्रूशल था। और ये अगर यही फॉर्मेट थर्ड टाइम जो है वो इंडिया के साथ टकराता है तो क्या समझते हैं कि विन करेगा? ऑफ कोर्स विन करेंगे, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि दैट्स आवर जॉब। और क्रेडिट हुसैन और नवाज़ को भी देना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहें कि कम टोटल पे उन्होंने चेस किया लेकिन प्रेशर को हैंडल किया। सो ऐसे ही है, 1-2 ही T20 में परफॉर्म करते हैं, सारे लड़के नहीं करते हैं, लेकिन हाँ उन्होंने आज काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली है और क्रेडिट उनको भी देना चाहिए। शाहीन, मेरा सवाल ये है कि जब भी पाकिस्तान और भारत का मैच होता है तो शाहीन अफरीदी को लोग सारे देख रहे होते हैं, लेकिन पिछले 4 से 5 मैचों में शाहीन अफरीदी ने उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी। तो अगले मैच में अगर पाकिस्तान और भारत का फाइनल होता है तो क्या हम देख सकते हैं शाहीन अफरीदी की दोबारा से वही वाली फॉर्म? आप मुझे ड्रॉप करना चाहते हैं? शाहीन अफरीदी पाकिस्तान से खेलेगा तो अपना जान भी दे देगा, फिक्र ना करना। शाहीन, हम 2 मैच इंडिया से हार गए, ओवरऑल 7 इंटरनेशनल मैच हार गए, तो सूर्य कुमार ने कहा कि अब कोई राइवलरी नहीं है, तो इससे आप इत्तेफाक करोगे? देखिए, मैं फिर भी हुई, उसकी अपनी बात है, उसको करने दे। अभी फाइनल तक ना वो पहुँचे, जब आएंगे तो देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं। हमारा काम है ये एशिया कप जीतना, जिसके लिए आए हैं, और अपनी पूरी एफर्ट करेंगे।